بسم الله الرحمن الرحيم ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے مرنا پڑے، مرنا مقدر ہے، مرنے سے فرار نہیں۔ محترم حضرات، ہمیشہ کی زندگی کو پانے کے لیے مرنا پڑے گا اور مرنا مقدر ہے اور مرنے سے فرار نہیں۔ جو ہی انسان کی موت آتی ہے، جنازہ تیار ہوتا ہے، ان کے وارثان یا وہ جو میت کا جنازہ پڑھا رہا ہوتا ہے، اس سے اعلان کروایا جاتا ہے دو باتوں کا۔ ایک، وہ قرضہ اگر اس میت نے کسی سے لیا ہے تو ہم وارثان سے آ کے لے لیں، اور کچھ دیا ہے کسی کو تو وہ پہنچا دے، اب اس کی مرضی کی بات ہے۔ دوسرا سوال یہ بھی ہوتا ہے، اس نے ایک زندگی گزاری ہے انسانوں کے بیچ، تو اس کی زبان سے، اس کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو کھڑے ہو کر وارثان کو مجبوراً معافی مانگنا پڑتا ہے کہ اگر ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے یا ہماری بہن یا ہمارا بزرگ جو بھی ہے، اگر اس سے کسی کو تکلیف پہنچی ہے تو اللہ کے واسطے اسے معاف کر دیں۔ تو مالی قرضے کا تذکرہ تو نہیں چل رہا ہے، بلکہ مالی قرضے کی طرح زبان اور ہاتھ کا بھی قرضہ تو نہیں ہے ہمارے آپ کے اوپر۔ یہی موضوع تھا نا پچھلا گزشتہ سے پیوستہ جمعہ، کہ زبان و ہاتھ سے کسی دوسرے کو تکلیف تو نہیں پہنچی ہے۔ یہ انسانی زندگی میں ہم جو ایک ساتھ رہتے ہیں، اس کا ایک بہت عالمگیر اصول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، جو معجزہ ہے اس کائنات کے لیے، معجزے کے جیسا ہے، کہ اس اصول کو جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے انسانوں کو دیا گیا ہے، امت محمدیہ کو دیا گیا ہے، وہ معجزہ ہے۔ اس کا انکاری کوئی انسان ہو ہی نہیں سکتا ہے، الا یہ کہ اس کی عقل چلی جائے۔ یہی سلسلہ چل رہا تھا، تو اسی کی ایک دو کڑیاں ہیں جو آج ہم آج کے خطبہ جمعہ میں پوری کریں گے انشاءاللہ۔ پھر باقی رہ گیا تو پھر کبھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ حالانکہ میرے لیے صرف یہ ایک حدیث کہ زبان و ہاتھ، یہ اتنا بڑا موضوع ہے کہ دو چار چیزوں میں کم پڑ جائیں گے صرف اس حدیث کے لیے۔ بہرحال ایک روایت اور پڑھ لیتے ہیں جو عام طور پر خطبہ حضرات سے آپ نے سنا ہوگا، تو اس کی عظمت کا احساس ہوگا ہمیں، اس کی عظمت کا احساس ہوگا۔ وہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنا پریوار قرار دیتا ہے۔ جیسے باپ جو ہے وہ اپنی بیٹی کو، اپنی بیوی کو، اپنے بیٹے کو، اپنے بھائی کو، بھتیجے کو، پوتا پوتی، نواسا نواسی کو کیا کہتے ہیں؟ میرے پریوار کے لوگ۔ ہمارا دائرہ بہت محدود ہے، کیونکہ یہ چند لوگ ہی ہیں خون کی شکل میں جنہیں ہم اپنا پریوار مانتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق ہے۔ اس نے اپنے بندوں کے بارے میں پروٹوکول دیا ہوا ہے۔ کیا پروٹوکول ہے؟ یہ میرے پریوار کے لوگ ہیں، یہ زید عمر بکر نہیں،
मां बाप भाई बहन ही नहीं है, दुनिया के जितने इंसान हैं वो मेरा परिवार है, वो मेरा परिवार है। ये दीन ऐसा होता है जी, ये दीन ऐसा होता है। और कुर्बान जाए इस हदीस पाक पे कि अल्लाह ताला अपने बंदे से कहेगा, मैं भूखा था, तूने मुझे खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तूने मुझे पानी नहीं पिलाया, मैं नंगा था, तूने मुझे कपड़े नहीं पहनाया, मैं जरूरतमंद था, तूने मेरी जरूरत पूरी नहीं की। ये प्रोटोकॉल है इंसानी जिंदगी का अल्लाह की तरफ से। अल्लाह ताला कहता है मेरा परिवार है। बंदा कहेगा अल्लाह तू तो सारी कायनात का खालिक है, हर पेट को पिलाता था, खिलाता था, लिबास देता था, हम तुझे कैसे खिलाते और पिलाते? जवाब तो आप दे चुके होंगे भाई। क्या जवाब होगा अल्लाह ताला का? कहा किसी भूखे को खिलाता तो गोया उसको नहीं खिलाया, मुझे खिलाया। किसी प्यासे की प्यास को दूर किया, गोया तूने अल्लाह को पिलाया। किसी नंगे को कपड़ा पहनाया, गोया उसने अल्लाह को कपड़े पहनाया। ये प्रोटोकॉल है अल्लाह की तरफ से इंसानी आबादी के लिए, इंसानों के लिए। ये ना समझे आप इस हदीस का मफहूम ये है कि सिर्फ मुसलमान, कोई भी हो अल्लाह की मखलूक में से, वो सब अल्लाह का परिवार है, कुंबा है अल्लाह ताला का, कुंबा है। इसको समझे। अब आगे बढ़ते हैं असल मौजू की तरफ। क्या बात बताई गई थी कि जुबान और हाथ, जुबान और हाथ, ये जुबान और हाथ बार बार बोलते हैं, इससे मुराद क्या है? पहले इसको समझ ले और आगे चलते हैं। जुबान और हाथ से किसी को दुख दिया जा सकता है, किसी पर जुल्म किया जा सकता है, किसी की चुगली की जा सकती है, किसी का मर्डर किया जा सकता है, किसी को रुस्वा किया जा सकता है, किसी को लूटा जा सकता है। जुबान और हाथ से किसी की मदद की जा सकती है, किसी भूखे को खाना खिलाया जा सकता है, किसी गरीब की मदद की जा सकती है, किसी को खुश किया जा सकता है। हाथ का दायरा, हाथ और जुबान का दायरा पूरा ये है। इसको हाथ और जुबान के लफ्ज से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताबीर किया है। अब कोई कहे कि कागज में मैंने लिख दिया तो हाथ से ही तो लिखेगा ना, फोन पे बोल दिया तो जुबान से ही बोला ना। हर चीज जुबान और हाथ के दायरे में मौजूद है। अब मुसलमान की पहचान अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई कि मुसलमान कैसा होता है, मुसलमान कैसा होता है, यानी हु आर यू, आपकी डेफिनेशन क्या है, आपका परिचय क्या है, आपका इंट्रोडक्शन क्या है, आप कौन हैं, आपकी हैसियत क्या है? इस सवाल का जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहां से दिया है, और यहां से इस्लामी जिंदगी की शुरुआत होती है। यहां से जुबान और हाथ की हिफाजत से इस्लामी जिंदगी की शुरुआत होती है। यानी शुरुआत इस बात की, यानी इस्लाम की पहचान इस बात की, मुसलमान की पहचान इस बात की, मुसलमान की निशानी इस बात की कि वो मुसलमान अगर है तो गारंटी दे कि उसकी जुबान से, उसके हाथ से दूसरे को तकलीफ नहीं पहुंचेगी। तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, ये मुस्लिम है, कि इस सवाल का जवाब है, इस सवाल का जवाब।
اور یہ جو زندگی ہوگی، یہ ہاتھ اور پیر کا تعلق دنیا سے تو ہے ہی، لیکن اس کی جواب دہی آخرت میں بھی ہوگی، آخرت میں بھی ہوگی۔ اور یہ زبان ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ کر لینا، یہ قانون کی بات ہے، قانون کی بات ہے۔ اگر آپ نے دل سے کسی کو اپنے زبان و ہاتھ سے تکلیف نہیں دیا ہے تو آپ صاحب ایمان ہیں، آپ کو اجر ملے گا۔ لیکن اگر ایمان والے ہونے کے باوجود، اس نقطے کو سمجھے، ایمان والے ہونے کے باوجود ہم نے اپنی زبان سے، اپنے ہاتھ سے کسی کو تکلیف دیا ہے، وہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے کنبے کو تکلیف دیا ہے۔ اس حدیث کو اب اس کے ساتھ جوڑتے چلے جائیں جو ابھی ہم نے پڑھا تھا نا، اس حدیث کو جوڑتے جائیں۔ ہوگا آپ کا بیٹا، ہوگی آپ کی بیوی، ہوگا آپ کا بھائی، ہوگا آپ کا پڑوسی، لیکن یہ بھی ہے، کوئی بھی ہو، مسلم ہو غیر مسلم ہو، وہ اللہ کا پریوار ہے، وہ اللہ کا پریوار ہے۔ اللہ کے پریوار کو تکلیف نہیں دینا، اللہ کی پھر شرط لگ گئی، جو بندہ کسی بندے کو اپنی زبان اور ہاتھ سے تکلیف دے گا وہ عادل ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ اس کی طرف سے معاف نہیں کرے گا بندے۔ اتنا بڑا نظام ہے بھی، یہ اتنی بڑی بات ہے، اللہ بھی ہاتھ نہیں ڈالے گا۔ کہتے ہیں نا صاحب وہ تو کلکٹر صاحب کا معاملہ ہے، ہم وہاں ہاتھ نہیں ڈال سکتے جی، بڑے چھوٹے لوگ۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پریوار کی عظمت کو اتنا اونچا کر کے دکھایا کہ میں بھی معاف نہیں کروں گا جب تک سامنے والا معاف نہیں کرتے۔ انصاف کی بات ہے نا، انصاف کی بات ہے۔ یہ اتنا بڑا نظام اللہ تعالیٰ نے دیا، اس کو ایمان سے جوڑا ہے، اس کو عقیدے سے جوڑا ہے، اس کو ایمان سے جوڑا ہے اور عقیدے سے جوڑا ہے۔ تو مومن و مسلمان کی زندگی کا اسٹارٹ یہاں سے ہوتا ہے، لیکن اس میں لذت وہ نہیں، لذت اس کے آگے ہے۔ لذت ایمان کی لذت، جیسے ہم بریانی کھاتے ہیں نا مزہ آتا ہے، مچھلی کھاتے مزہ آتا ہے، ٹھیک، گلاب جامن کھاتے تو اس کی لذت ہوتی ہے کہ نہیں، زبان محسوس کرتی کہ نہیں۔ صاحب ایمان کا معاملہ یہ ہے، جب وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز میں لذت محسوس کرتا ہے جی۔ روزہ رکھ کر روزداروں کے پیچھے روزے آ رہے دوڑتے ہوئے، روزے دوڑتے ہوئے آ رہے ہیں، روزہ رکھتے ہوئے لذت محسوس ہوتی ہے جو ناقابل بیان ہوتی ہے کہ کھانے کی لذت بھی ہیٹ ہو جائے۔ اللہ کی عبادت کر کے جو لذت ملتی ہے صحیح معنوں میں، وہ لذت کھانے بھی بیکار ہے، وہ کھانے بھی اس مقام کو نہیں پہنچ سکتے جی۔ تو یہ لذت چاہیے، اس میں ایمانی لذت، یہ ایمانی لذت پیدا کریں گے نا، پھر جرأت نہیں ہوگی کسی مومن و مسلمان کی کہ وہ اپنی زبان اور اپنے ہاتھ سے دوسرے کو تکلیف دے۔ کہے گا یہ تو میرے ایمان کا مسئلہ ہے، میری آخرت کی بربادی کا مسئلہ ہے جی۔ یہ تو ایمان کی لذت، جب آپ اس کو شعور کی حد تک اپنے ہاتھ کو، اپنی زبان کو اس دائرے میں باندھ لیں گے تو یقیناً آپ کی زبان اور آپ کا ہاتھ دوسرے کو تکلیف نہیں دے گی۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ یہ قانون ہے، قانون یہ پہلا ہے۔ یہ دوسرا مقام کیا ہے؟ وہ دوسرا مقام یہ ہے جہاں ایمان کی لذت اور بڑھتی چلی جاتی ہے، بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ایک تو یہ اس قانون کے تحت، اس حدیث پاک کے مطابق، نبی پر ایمان لانے کے
नतीजे में वो अपने जुबान और अपने हाथ को पाबंद रखता है, उनको हथकड़ियों से बांधे रहता है कि दूसरे को जुबान और हाथ से तकलीफ नहीं देना है, इसलिए कि मेरी पहचान ही बताई गई है कि मैं मुसलमान हूं। मेरी पहचान ही बताई गई है कि मुसलमान की जिंदगी यहां से शुरू होती है। ये मुसलमान की पहचान बताई अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि उसकी जिंदगी का आगाज मौशरती जिंदगी में यहां से शुरू होती है। लेकिन इतने में मजा नहीं है, वो एक कदम और आगे बढ़ाता है, कहता है इन अल्लाह के बंदों में से कोई बंदा हो, मैं अपने लिए जो पसंद करता हूं वही अपने भाई के लिए भी पसंद करता हूं, ये ईमान। और जो चीज मैं अपने लिए नापसंद करता हूं मैं अपने भाई के लिए भी नापसंद करता हूं। हदीस क्या है? आहिब लिगैरिही मा तुहिब्बु लिनफ्सिही। ये दूसरा स्टेप है इंसानी माशरे की जिंदगी का, ये दूसरा स्टेप है जी, दूसरा स्टेप है। जुबान और हाथ को तो पाबंद करना है, दिल के दरवाजे भी खुले हो माशरती जिंदगी में कि मेरा कल्ब और दिल भी वही कहता है जो मेरे परवरदिगार और मेरे पैगंबर के जरिए से बता दिया गया। जब इसको अपना ईमान का हिस्सा बनाओगे ना तो रात में सोते अब जरूर सोचोगे यार मेरे हाथ से जुबान से किसी को तकलीफ क्यों नहीं पहुंची है। और दूसरा यह है कि मेरे दिल में किसी के लिए हिज्द, किसी के लिए दुश्मनी, किसी के लिए अदावत तो नहीं है जी। अगर इस हदीस पाक के अपोजिट मफहूम को लिया जाए कि किसी के दिल में दूसरे मोमिन के बारे में जर्रा बराबर भी हसद, कीना और बुग़्ज़ है, अल्लाह ताला का प्रोटोकॉल इतना तगड़ा है, तेरी नमाज भी बेकार हो, तेरा रोजा भी बेकार हो, तेरा हज भी बेकार। अल्लाह, ये दूसरा स्टेप। और हदीस पाक इतनी सख्ती से कहा है वल्लाहि ला युमिनु अहदुकुम। अल्लाह ताला कसम खा रहा है, क्या कह रहा है? अल्लाह की कसम, वल्लाहि अल्लाह की कसम, वो आदमी मोमिन नहीं हो सकता है हत्ता युहिब्बा लिगैरिही, दूसरे के लिए भी वही पसंद करे, हत्ता युहिब्बा लिनफ्सिही, जो दूसरे अपने लिए पसंद करता है वो दूसरे के लिए भी पसंद ना करने तो अल्लाह ताला कसम खा रहा है, कसम खा रहा है। यानी इसका अपोजिट मफहूम ये होगा, मैं तो अपने लिए पसंद करता हूं, मेरे भाई जैद के लिए मैं ना पसंद करता। तो अल्लाह के नबी कसम खा के कहते हैं वो मुसलमान नहीं, वो मुसलमान नहीं। तो चलिए थोड़ा सा और सिलसिला आगे बढ़ाते। जुबान और हाथ को बांध लिया आपने, अपने दिल को भी काबू कर लिया, ईमानी लज्जत कितनी आएगी जी? है जिस तरह नमाज पढ़ते हो ना माशरती जिंदगी में, जब ये अमल करोगे तो इसमें भी लज्जत आएगी और प्रोग्राम बन जाएगा हर मोमिन और मुसलमान का कि अल्लाह का एहसान है कि मैंने अपनी जुबान और हाथ से किसी को तकलीफ नहीं दिया, लेकिन मैंने कितनों की मदद किया, कितनों को खुश किया, और ये भी मुआवजा करते चला गया, कितनों को नाराज किया, ये भी मुआवजा करता चला जाए। ये दूसरा मकाम। अल्लाह अकबर। दीन के क्या कहने जी, दीन के क्या कहने, इतने में काफी नहीं है, अभी लज्जत आती जाएगी। जुबान को बांध लिया, हाथ को बांध लिया, कल्ब को भी काबू में कर लिया, अल्लाह के इस परिवार के लिए, अल्लाह के इस परिवार के लिए।
تو تھوڑا سا اور اپنے معاشرے کا تھوڑا محاسبہ ہو جائے، تھوڑا سا آگے، پھر آگے بات بڑھتی ہے۔ آج مسلمان اسلام کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں، فرقوں کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں، گاؤں اور قبیلوں کے نام پر کیا کیا کر رہے ہیں جی۔ فرقوں کے نام پر ایک فرقہ دوسرے کو گالیاں دیتا ہے، گریاتا ہے، مسجدوں میں لکھتا ہے یہاں پر وہابیوں کی، اہل حدیث کی، دیوبندیوں کا داخلہ ممنوع ہے، اور غلطی سے کوئی چلا جائے تو مسجد دھلی جاتی، اور اگر ان کا سایہ پڑ جائے تو ان کی بیوی کے طلاق بھی ہو جاتی جی۔ یہ مسلمان ہے۔ تھوڑا سا اور قریب آئیں، میرا خاندان وہ کہاں، وہ تو ذلیل ہے جی، یہ چھوٹے لوگ ہیں، ہمارا مقابلہ کہاں ہے ان سے، یہ بھی اسی دائرے میں آتا ہے۔ ہم بڑے مسلک والے ہیں تو مسلک کی بنیاد پر دوسرے کو ذلیل کرنا، رسوا کرنا، ان کی توہین کرنا، اپنی زبان سے ان کو تکلیف دینا دعوتی نقطۂ نظر سے بھی غلط ہے اور اصولاً بھی غلط ہے۔ ٹھیک ہے، آپ قرآن و سنت والے پابند ہیں، آپ پابند رہے، یقیناً یہ بات صحیح ہے کہ توحید کا قیام اور شرک کی تردید، سنت کی اتباع اور بدعت کی تردید، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کہیں شرک پایا جا رہا ہے، بدعت پائی جا رہی ہے، تو آپ ان کے اس بدعملی میں، اس گمراہی عمل میں شریک نہ ہو، دل سے نفرت بھی رکھے، ان کاموں میں شرکت کی گنجائش نہ نکالے۔ ہم اور آپ یقیناً کمپرمائز توحید میں اور شرک میں، اتباع سنت میں اور بدعت میں کبھی بھی نہیں کر سکتے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم دوسروں کو ذلیل کریں اور رسوا کریں۔ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سامنے والا اگر کسی شرک میں، کسی بدعت میں، کسی خرابی میں مبتلا ہے، آپ کی ذمہ داری بنتی ہے اس کو اس سے ہٹائے۔ اس کی مثال ایسی ہی ہے، جیسے کوئی شراب پیتا ہے تو کوشش کرو کہ نہیں یہ شراب نہ پیے، ایسا نہ ہو کہ تم اس کے ساتھ شراب پینے تم بھی چلے جاؤ جی۔ شراب سے نفرت ہے، لیکن یہ بھی تو ذمہ داری ہے کہ آپ کو اس کو شراب کو چھڑانا ہے۔ اللہ حضر قیاس وقت کم رہتا ہے، تو اس طرح سے ہم اپنے اعمال کو، اپنے عقائد کو دیکھیں۔ تو میرے بھائیوں اور بزرگوں، یہ جو اس کا تیسرا مقام ہے انسانی معاشرے کی زندگی کا، وہ کیا ہے؟ بڑا عجیب و غریب ہے جی، وہ اللہ کی قسم اتنا قیمتی ہے۔ وہ کیا کہتا ہے؟ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ اب تھوڑا سا ترتیب جوڑے، یعنی سمجھانا پڑتا ہے، عوام الناس رہتی ہے۔ اپنی زبان اور ہاتھ سے دوسرے کو محفوظ کر لیا، اپنے دل کو بھی صاف کر لیا، اس میں ایمانی لذت نہیں ہے جی، اس سے اچھا کھانا ہی نہیں ہوگا۔ یہ جو تیسرا مقام بتا رہا ہوں نا، اگر کھانوں میں آپ کسی کو، پھل میں آپ کسی کا انتخاب کریں کہ پھلوں میں آم بادشاہ ہے، آم پھلوں میں بادشاہ ہے، اسی طرح معاشرتی زندگی میں یہ اصول، کون سا اصول؟ اپنے آپ کو گھاٹے میں ڈال لو، دوسرے کو فائدہ پہنچا دو، اپنے آپ کو بھوکا رکھ لو، دوسرے کی بھوک مٹا دو، اپنے آپ میں ننگے رہ جاؤ، دوسرے کو کپڑے پہنا دو، اپنے آپ میں بے عزت ہو جاؤ، دوسرے کی عزت بچا لو۔ یہ ہے وہ مقام، یہ ہے وہ مقام۔ تھوڑا سا اور آپ ابھی جو ڈیبیٹ ہوئی شمائل ندوی اور
उनके मुकाबले में जो थे अख्तर, जावेद अख्तर, उन्होंने कहा भाई एक मुल्क का सर्वे किया गया, उसमें एक पैक शराब के और एक दूसरा आदमी शराब के 2 पैक लेता है, और एक आदमी तीसरा वो है जो शराब पीता ही नहीं। उनकी जिंदगी का मुआयना हुआ तो मालूम हुआ कि डेथ का जो परसेंटेज है वो जो शराब नहीं पीते हैं उनका है ज्यादा, और जो एक पीता है सोते वक्त उसका और ज्यादा। जो 2 डेली शराब पीता है 2 पैक, उसका रेशो कम है मौत का। और फिर बातों बातों में कहता है, बात समझने की बड़ी काम की, कहा ये मल्टीप्लाई होती है शराब। शराब क्या होती है? मल्टीप्लाई होती है। मल्टीप्लाई का मतलब 1 है तो 2, 2 है तो 4, 4 है तो 8, यानी इतनी सी शराब पियो तो फिर कल और एक छटाक, परसों एक पाव, फिर बढ़ती चली जाती है। मजहब का भी मामला यही है, ये भी मल्टीप्लाई होता है। मजहब भी मल्टीप्लाई होती है। उसका इशारा इस तरफ था कि जो मजहबी जुनूनी होते हैं ना, मजहबी जुनूनी होते हैं, वो असल मजहब नहीं होता, पता नहीं कहां से ले आते हैं। वो जुनूनी मजहब पता नहीं किस किस को, किन किन को, अपने लोगों को, दूसरों को, जिसको चाहते हैं मजहब की बुनियाद पर तकलीफें देते रहते हैं। हत्ता कि यह भी नौबत आती है अपने आप को ब्लास्ट कर देते, खुदकुश बमबार बन जाते, बेगुनाह इंसानों को उड़ा देते, बेगुनाह इंसानों को उड़ा देते। तो अगर जावेद अख्तर से मुलाकात होगी तो भाई वो वाला जो मतलब मजहब की शराब पीते, तो हम उनको ये शराब पिलाते, नाउज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। कौन सी शराब? वही मोमिन की पहचान ये है कि वो अपनी जुबान से, अपने हाथ से दूसरे को महफूज कर ले। ये एक गिलास हुआ इंसानी अमन का, ये एक गिलास हुआ। और इंसानों की बेहतरी का दूसरा गिलास ये है, अपने दिल को दूसरे के लिए पाक और साफ करे, अपने लिए वही पसंद करे जो दूसरे के लिए भी पसंद करे। अब जो दूसरे के लिए पसंद करे वही अपने लिए, और जिस चीज को खुद नापसंद करता है वो दूसरे के लिए भी नापसंद करे। ये पियो भाई, इसमें कहां किसी को नुकसान हो रहा है? ये तो दुनिया जन्नत बन जा रही है। जरा सा तसव्वुर कीजिए, हमने का हर इंसान अपनी जुबान और हाथ से तय कर ले कि हम किसी को तकलीफ नहीं देंगे। क्या किसी घर में कोई झगड़ा हो सकता है? किसी महल्ले में कोई झगड़ा हो सकता है? किसी मुल्क में कोई झगड़ा हो सकता है? दुनिया में कोई झगड़ा हो सकता है क्या? झगड़े तो शुरू होते ही है इसे जुबान और हाथ से। झगड़ों का जरिया क्या है जी? यानी ये तो खुली बात है, अकल वाली बात है। कहां से शुरू होते? यही से शुरू होते। और मुल्क में फिरका परस्ती भी बढ़ती चली जा रही है, आप देख भी रहे। कुछ लोग घर में नमाजें पढ़ रहे थे, बुलडोजर वाले आए तो गाड़ के उनको अरेस्ट करके ले गए। क्यों पढ़ते हो? अमन में खलल हो। बैतूल में एक स्कूल चल रहा था, शिकायत बजाओ के सही हो, बुलडोजर पहुंच गया, ध्वस्त कर दिया। ये है क्या? ये है क्या? तो मेरे भाई और बुजुर्गों, ये दूसरा मकाम और तीसरा मकाम अजीबो गरीब है। अगर कायनात में ना, यानी जितने दुनिया के हुकूमतों के कानून बने हैं, थोड़ा सा मुआवजा भी तो करे कि ये मौजज़ा कैसे है, ये मौजज़ा कैसा है। अल्लाह की कसम मौजज़ा है। किसी कानून में ये लिखा है कि तुम दूसरे के लिए दिल भी पाक रखो, अपनी जुबान और हाथ से। इसको तो कानून में ले लिया। हर कानून की किताब में
इंसानी हुकूक के पेश नजर ये लिखा हुआ है कि कोई किसी को तकलीफ नहीं देगा। अपनी जुबान से मैं अपने अल्फाज में कह रहा हूं, इनको दूसरे लफ्जों के साथ कहा है, ये नबी का फरमान है, लेकिन हर दस्तूर में ये लिखा हुआ, लेकिन ये किसी दस्तूर में नहीं लिखा है कि अपने दिल को भी पाक करो। कहीं लिखा हो तो बता देना भैया। और दुनिया के किसी दस्तूर में अगर कहीं ये लिखा हो, अपने आप को भूखा रखकर दूसरे को खिला दो, अपने आप को नंगा होकर दूसरे को खिला दो, अपने आप में बेइज्जत होकर दूसरे की इज्जत को बचा दो। जी ऐसा कहीं लिखा हुआ है, यही तो मुआवजा है जी। इससे बड़ा कोई दस्तूर, इससे बड़ा कोई कानून हो सकता है जिंदगी का? मेरे भाई और बुजुर्गों, सहाबा की जिंदगी में ये मिलता है, सहाबा की जिंदगी में हमें ये मिलता है। वो कैसे? हिजरत करके जब मुसलमान गए मदीना, एक सहाबी ने कहा कि मेरे पास 2 बीवी हैं, मैं अपनी एक बीवी को तलाक देता हूं। उसकी जरूरत थी, 2 बीवी थी, लेकिन भाई की जरूरत पड़ी तो क्या कहा उसने? मैं अपनी बीवी को तलाक दे देता हूं, तुम जरूरतमंद हो, उसको ले लो। किसी ने कहा मैं कारोबारी हूं, तुम अभी कारोबार में नहीं हो, तो मेरे साथ कारोबार में शरीक हो जाओ, मेरे साथ कारोबार में शरीक हो जाओ। यह है यूसरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। वो दूसरों को तरजीह देते हैं जबकि खुद का नुकसान हो जाए। एक बीवी को छोड़ना नुकसान तो है, एक कारोबार में दूसरे को शरीक कर लेना खुद का नुकसान तो है बजाय, लेकिन आखिरत का सौदा तो है। और सहाबा की जिंदगी में यह भी मिलता है, 5-7 सहाबी जंग के मैदान में तड़पते हुए पड़े। उसमें से एक सहाबी पानी की आवाज लगाता है, पानी पानी। एक रिजाकार दौड़कर मशके में पानी लेकर के आता है, पानी लेकर के आता है। और एक जो जख्मी है उसके पास पहुंचता है, कहता है ले भाई पानी पी ले। लेकिन वो जख्मी सुनता है बाजू वाले को, वो आवाज दे रहा है मुझे पानी पिलाओ। मोमिन वो होता है जो कहता है मैं अल्लाह को क्या हिसाब दूंगा, मेरा भाई तड़पते हुए मर जाए और मैं सिकम चैर हो जाऊं, नहीं मुझे न दो, उसको दे दो। मुझसे ज्यादा हकदार है, मुझसे ज्यादा हकदार है। जावेद अख्तर साहब ये पैक्ट किए आप, दीन का ये पैक्ट, दुनिया जन्नत बन जाएगी जी, दुनिया ही जन्नत बन जाएगी। अलगरज वो मशकेदा, वो रिजाकार दूसरे के पास पहुंचता है, तीसरा कहता है पानी पानी। जब वो दूसरे के पास पहुंचकर उसको पानी पिलाना चाहता है, तीसरे की आवाज सुनकर वो भी कह देता है मुझे ना पिलाओ, मेरे पड़ोसी को पिला दो। अलगरज 5 या 6 सहाबी जो जख्मी थे, जब आखिर प्यास वाले के पास पहुंचते हैं तो इधर सारे के सारे अल्लाह को प्यारे। इंसानी तारीख में इंसानी हमदर्दी का ऐसा कोई सबूत है, ऐसा कोई सबूत है? तो वो लोग जो एथिस्ट हैं, वो लोग जो एथिस्ट हैं, ये वाली शराब पिए ना भाई। उनको शिकवा था कि कुछ जो जुनूनी मजहबी होते हैं, हमारे यहां भी कुछ लोग नजर आने लगे इस तरह के जुनूनी, जो मजहब और मसलकों के नाम पर एक दूसरे को जलील करना चाहते हैं, एक दूसरे को रुसवा करना चाहते हैं। अल्लाह ताला महफूज रखे। ये शर है। आप जिस मसलक और जिस अकीदे को भी मानते हैं उस पर कायम रहे, दूसरे का एहतराम करें। इस पैमाने पर
एक है इस्लामी बिरादरी और एक है इंसानी बिरादरी। इस्लामी बिरादरी गरचे मसलक अलग अलग है, उसकी तफसील का मौका नहीं है, लेकिन हमारे यहां इस दीन के नाम पर, मसलकों के नाम पर नफरतें फैलती है, पनपती है, बढ़ती है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस फिरका परस्ती से हमें और आपको महफूज रखे। ये मस्जिदें हमारी अलामत है, ये मस्जिदें हमारी अलामत और पहचान है, अल्लाह का एहसान है। हर तरह का इंसान आकर इस मस्जिद में इबादत कर सकता है। मेरे मालूमात के मुताबिक कभी कोई ऐसी गलती नहीं हुई जिम्मेदारों के तरफ से या उलमा के तरफ से कि किसी भी शक्ल में किसी भी तरह आकर के अल्लाह की कोई इबादत करता है तो उसकी तौहीन और तजलील की गई। अल्लाह ताला इस रिवायत को बरकरार रखे, इसी में हुस्न है और इसी में खूबी भी है। अभी भोपाल से मुफ्ती साहब आए थे, नूर मस्जिद जो घसियारी में अल्लाह है, उनके बुलावे पर हम वहां भी गए थे। क्या नई एजुकेशन गाइडलाइन आई है जिसमें इस्लाम के पढ़ने वाले बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। दूसरे कोई शकील जिसने मैदी होने का दावा किया है वो शर भी फैलता चला जा रहा है। हमारे मोहतरम अमीर असगर अली इमाम साहब, देवबंद के बहुत बड़े पीर अनवर शाह कश्मीरी, उनका 100 साला प्रोग्राम हुआ था, हमारे अमीर मोहतरम वहां भी तशरीफ ले गए। तो इंसानी एतबार से हमें ये कायदे पर अटल रहना चाहिए, इंसान इंसान है, ये अल्लाह का कुंबा है। हमारी जुबान से, हमारी हाथ से किसी को तकलीफ नहीं होना चाहिए। आंख बंद होते ही अल्लाह के यहां हमें और आपको हिसाब देना होगा। अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक बख्शे और हमें वो जो सवाल है हु आर यू, हाउ आर यू नहीं, हु आर यू, आपका परिचय क्या है, आपका परिचय पत्र लेकर, परिचय पत्र लेकर आपको अपने घर के बाहर निकलना है। अपने घर में भी परिचय पत्र हर एक को दिखाना है, महल्ले वालों को दिखाना है, शहर वालों को दिखाना है, मुल्क वालों को दिखाना है, सारी दुनिया को दिखाना है। वो परिचय पत्र क्या है जो पिछले 2 खुतबे जुमा से हम आपको बता रहे हैं। हमारा परिचय पत्र इंसान की माशरती जिंदगी में यह है कि हम अपनी जुबान से, अपने हाथ से दूसरे को महफूज रखें, अपने दिल में दूसरे के लिए नफरत ना रखें, वही पसंद करें जो अपने लिए पसंद करते हैं, वो दूसरे के लिए भी पसंद करें, और मौका आने पर हम ये भी करें, खुद जलील हो जाएं, दूसरे को जिल्लत से बचा लें, खुद भूखे रह जाएं, दूसरे को खिला दें। अलगरज ये हमारा परिचय पत्र, ये आइडेंटिफिकेशन है। आप इस आइडेंटिटी को कितने लोग दिखाते हैं, कितने लोग जानते हैं आपको? ये आइडेंटिटी तो गायब हो गई है ना हमारी जिंदगी से। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें अमल की तौफीक बख्शे। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।